We are thrilled to welcome you all on the 78th Independence Day celebration of ABPS Vehla. I'm your anchor, Vidushi Gupta. And I'm your co-anchor, Amit Kumar Shukla. We are your hosts for today's commemoration of our great nation's birth. Let's come forward to observe our national flag, waving in pure air and giving the sign, we are independent. For it, I request the toppers of class 10th and 12th of session 2023 and 24, Master Vishal Kumar, Master Fahim, and Master Saurabh, along with our principal sir, to hoist the flag. For that, we shall see we want to be an Indian each, which will be followed by national anthem. Master Vishal Kumar, Master Fahim, and Master Saurabh. इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। Absolutely trained is the rhythm of national parade. Our students are curiously waiting to demonstrate it in presence of our principal sir. I request our head boy, Master Avnish Yadav, to ask the students to perform the parade so that our principal sir can visit it. Sir, our group, sir, ready for inspection. Our principal sir is approaching the march past field, being escorted by our vice principal ma'am. Our head boy, Master Avnish Yadav, is leading them to the boys' group. Our principal sir is carrying the boys. Now he is congratulated by the captain of the boys group, Dr. Aditya Bharadwaj, and others of the troop. Now he is carrying to the girls group and is congratulated by the captain of the girls group, Ms. Anika Singh. And Attention! School, fire right turn!
full swing in a disciplined way, with full of zeal and enthusiasm. It is spectacular to watch these students so synchronized and enthusiastic, representing one nation, one mission, one identity. मेरी पहचान, मेरा भारत। उठो नौजवान, हो चुका नवीन प्रभात है, रुको मत, आगे बढ़ो, ये तो अभी शुरुआत है। समय पथ का पहिया चलता चला जाता है, जो रुक गया उसका अस्तित्व मिट्टी में मिल जाता है। It's an ecstasy to watch these beautiful young students moving forward with their own heroic spirit. Honorable Principal Sir, Vice Principal Ma'am, respected teachers, and my dear friends. Today, as we gather to celebrate our Independence Day, we stand together in remembering our nation's immense sacrifices and relentless efforts which have gifted us the freedom which we cherish. This day is not merely a date, but a solemn reminder of our nation's arduous journey to liberty and the many freedom fighters who paved into the way. The struggle for independence was not an overnight achievement. It was the sage of persistence, resistance, and undying hope that spanned over decades and decades. Our freedom fighters from each corner of the nation stood with very extraordinary courage to fight with colonial administration. Our freedom fighters like Mahatma Gandhi, with his philosophy of non-violence and civil disobedience, mobilized millions to stand up for their rights. Leaders like Subhash Chandra Bose inspired countless with his armed struggle and by the formation of Indian National Army. Women like Sarojini Naidu, Kasturba Gandhi, and Rani Lakshmi Bai stood shoulder to shoulder with men and fought for our nation's freedom. It is their spirit of sacrifice and relentless efforts which we are honoring today. Now, as we are remembering our nation's sacrifices, it is also important to mention the progress India has made. In the last 7 decades, India has achieved various advancements in almost all the fields, transforming from a fledgling nation to a global power. In agriculture, we have witnessed green revolution, which has transformed us from a food-efficient country to one of the largest food producers of grain in the whole world. Our India is like a hub of innovation. Our space program, spread leaded by ISRO, has achieved incredible milestones, including Mars Orbiter mission and Chandrayaan mission. Our IT sector has placed us in the global map, making us leader in software development and services. In healthcare, we have made significant strides in improving public infrastructure and medical health. The eradication of diseases like polio and the recent successful handling of COVID-19 through extensive vaccination have showed us our capability to fight with health crisis. Establishment of premier institutions like IITs and IIMs have placed us in the global map, making us leader in almost all the fields. Now, as we are standing here today, proud of our heritage and achievement, we should also struggle. We should also fight for our nation's all the issues. It is our collective responsibility to address the issues like poverty, inequality, and climate change. It is our responsibility not to only build an India which is based on the vision of our freedom fighters, but also to build an India which is based
on the prosperous and equitable future for the upcoming generation to come. Yes, it is our collective responsibility. Our journey is ongoing. We have to struggle. Now it is our responsibility to show our capability to all the world and fight with all the issues together in unity. It is our responsibility to hold the values of freedom struggle, which is unity, integrity and determination. Let us show the capability of vibrant, harmonious and strong India. May our nation continue to shine and thrive in the global stage. Jai Hind. Thank you, Ms. Bhumi, for giving a wonderful speech. अपनी धरती अपना है वतन, मेरा है वतन। इस पर जो आग उठाएगा जिंदा दफनाया जाएगा। मुझे जान से भी प्यारा है ये वतन। Now I would like to call Ms. Jyotsna Shukla for the Hindi speech. अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। दुनिया में जो सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, तूफान कहते हैं। परम सम्माननीय अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं ज्योत्सना शुक्ला कक्षा 9वीं की छात्रा आप सभी का स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तथा गण सम्माननीय जनों का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आज इस आजादी के महोत्सव पर अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। आजादी का असली महत्व वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में चल चुकी थी, जो हर साल 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को आजादी दिलाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि हम जब फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती छोला की एक आवाज पर टोलों की टोली उमड़ आती थी और वंदे मातरम की एक लहरी पे खूनों में आने वाला वो 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेज शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पे चढ़ जाते थे, आखिर वो भी तो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे। अरे उस दौर में देशभक्ति को साबित करने की कसौटी ही कुछ ऐसी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली महिलाएं जब अपने घर को वापस लौटती थी तो उनकी घर की हालत कुछ ऐसी होती थी। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक विस्फोट ऐसा हुआ पूरे जिस्म की बोटियां ही चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा था साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। मेरे विचारों में तो सबसे बड़ा देशभक्त वही है जो अपने काम पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी साहस से करता है। अरे मैं नहीं मानती कि आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा की डीपी को 3 रंग में रंग देंगे तो आप देशभक्त कहलाएंगे। अगर ये देशभक्ति है तो मैं पूछना चाहूंगी कि वो बच्चा कौन है जो ही फुटपाथ पर नंगे पांव तिरंगा बेचता है, तो क्या आप उसे भी देशभक्त कहेंगे? नहीं, वह देशभक्त नहीं है। उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे यह काम करने पर मजबूर कर रही है। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं न साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अरे क्या खूब कहा है एक शख्स ने, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहना इस धरती पे, वरना ये कब्र भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। अरे मेरे विचार में तो सबसे बड़ा देशद्रोही वो बेटा है जो अपने माँ बाप को यूं वृद्धाश्रम की चौखटों पर छोड़ आता है। अरे तरफ उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों के साथ सेल्फी खींच के लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। हमारा भारतवर्ष जो हमारी युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है, अरे वो युवा पीढ़ी जो अपने विचारों को एक साल वैसा की स्क्रीन पर अपने कोमल हथेलियों के घर्षण मात्र से इमोजी के द्वारा भेज रही है। हम एक पत्थर के मूर्त के आगे तो 56 भोग लगाते हैं, लोग यूं ही भूखे प्यासे तरफ फुटपाथ पर सो जाते हैं। मजदूर को मजबूर न समझे, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, मरने के बाद अन्नदान दीजिए, किसी मरने वाली को जीवन दान दीजिए। मैं यहाँ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए बस एक ही चीज कहना चाहूंगी, आज इस आजादी के महोत्सव पे मैं उन देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहूंगी जिनके अथक प्रयास से हमारे देश को आजादी मिली। उस आजादी की हिफाजत करना, रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य है। न सरकार मेरी है, न ये रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न ये रब मेरा है और न ये बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे गुरूर है तो बस एक ही बात का, मैं ये भारत देश की निवासी हूँ और ये भारत
देश मेरा है और ये भारत देश मेरा है। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Jyotsna, for your inspiring speech. से फना होने की कोशिशें झुकती नहीं, झुकाने से सरफरोशों की कायनातें। ऐ हिंद तुझे है कुर्बान कतरा कतरा इस खून का, जिस्म जान क्या चीज है ये नजराना है रूह तेरे वास्ते। Our students coming up with a patriotic song, भारत महान है।
किसी का रंग सुनहरा, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं भारत का चैन। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवीन का अंदाज़ी हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी कर रहा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ। विज्ञान में हूँ, किसान में हूँ, हर वीर में और जवान में हूँ। मैं सीमाओं का पहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे। इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको न सपनों के तूफानों को, रोको न जज्बों की उड़ानों को, रोको न आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। ओ जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। रात की सुरंग भटकी है रोशनी, है झटपट रही रोशनी। जाना है लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी। जिद से जुनून तक रह जाना, हर कतरा बोल रहा है। मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी। जिद से जुनून तक रह जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी। जिद से जुनून तक रह जाना, हर कतरा बोल रहा। हमारे देश के शहीदों ने अनगिनत तरीकों से शहादत दी थी, भारत माता को अंग्रेजों की चुंगल से छुड़ाने के लिए, मुक्त करने के लिए। और तभी तो हम आज का दिन देख पा रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने जो नरसंहार किया था, उसके कई रिएक्शन सामने आए थे।
कई क्रांतिकारियों ने अपने अपने तरीकों से उसका विरोध किया था। उनमें से कुछ को हम जानते हैं और बहुत किसी को हम नहीं जानते हैं। उनमें से एक है उधम सिंह, जिन्होंने 21 साल इंतजार किया अपना बदला पूरा करने के लिए। जालियांवाला बाग के हत्याकांड के दिन वो भी वहां मौजूद थे। देश की मिट्टी को हाथ में लेकर उन्होंने शपथ लिया था, तुम्हारे साथ क्या होगा तुम नहीं जानते। और फिर 21 सालों के लंबे इंतजार के बाद लंदन में जाकर भरी सभा में उन्होंने जनरल डायर की हत्या की और अपना बदला पूरा किया और फिर हंसते हंसते शहीद हो गए। तो आइए देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड और उधम सिंह। एक ऐसा कानून जिसकी परछाई में मानवता के इतिहास पर काले धब्बे जड़ती। भारत में 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। उसमें ऐसी अदालत की व्यवस्था थी जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती थी। रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में क्रोध का माहौल था। 13 अप्रैल 1919 अगर
looting and killing one another. It is not only Africa, ladies and gentlemen, that is the white man's burden. With the benefit of my experience, I can tell you that these reforms have been effective. The country is unified once more. It is peaceful. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. घटना के 4 महीने बाद ही 31 जुलाई 1940 में उधम सिंह को कैंटोनमेंट विलेज जेल में फांसी दी। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मुझे उनसे घृणा थी। वो इसी के लायक थे, वही असली अपराधी थे। वो मेरे अपनों की भावना को बदलना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें बदल दिया। पूरे 21 सालों तक मैं बदला लेने की कोशिश करता रहा। अब मैं खुश हूँ कि मेरा काम हो गया है। मैं मौत से नहीं डरता और मैं मेरे देश के लिए मर रहा हूँ। इससे बड़ी प्रतिष्ठा मुझे क्या मिल सकती है कि मेरी मृत्यु मेरी मातृभूमि के लिए हुई। इधर आओ सौरभ। सौरभ दे दो पेरेंट टैग करके सर देंगे मैडम देंगे सर दीजिए सर प्लीज।